بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ مسلسل 3 دن سے سفر کرتے کرتے میں تھکن سے بے حال تھا۔ پتھریلے اور دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے میں ٹرک کو اب منزل کی جانب لے کر رواں دواں تھا۔ میرے ساتھ بیٹھا میرا ساتھی کب کا سویا ہوا تھا۔ پورا دن اس نے ٹرک چلایا تھا، اب میری باری تھی، اسی لیے رات کے اس پہر میں تھک جانے کے باوجود مسلسل منزل کی جانب چلے جا رہا تھا۔ جہاں پر سامان پہنچانا تھا وہاں پہنچنے میں 3 گھنٹے بھی مزید لگنے تھے۔ ٹرک کی سپیڈ بھی میں نے نارمل رکھی تھی کیونکہ رات کے وقت کسی بھی قسم کا کوئی حادثہ پیش آ سکتا تھا، اسی لیے میں زیادہ تیز ٹرک نہیں چلاتا تھا۔ تیز ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اچانک میں نے دیکھا کہ جب کوئی وجود عین سڑک کے بیچوں بیچ پڑا تھا۔ میں حیران تھا، بھلا رات سے آدھی پہر یوں کسی کی لاش ملنا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں کسی بھی مصیبت میں پھنس سکتا تھا، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے میں نے اچانک رک کر بریک لگائی اور نیچے اتر گیا۔ اس وجود کو دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا کیونکہ وہ ایک نسوانی وجود تھا۔ سیاہ لمبے بال زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے قریب جا کر سانسیں چکی جو کہ چل رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ لڑکی جو کوئی بھی تھی یہ ابھی زندہ تھی۔ زخموں کا تو اس کے جسم پر کوئی نشان نہیں تھا، لیکن شاید اندرونی چوٹ کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو کر سڑک پر پڑی تھی۔ میں نے 2-3 دفعہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے ایسی کون سی چوٹ تھی جس کی وجہ سے یہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ پھر میں نے اسے اٹھایا اور ٹرک کی پچھلی سائڈ پر جہاں ایک جگہ خالی تھی وہیں پر لٹا دیا۔ میں رات کے اس پہر یہاں رک نہیں سکتا تھا کیونکہ آس پاس گھنا جنگل تھا۔ ایک بار پھر سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ رہ رہ کر مجھے اسی لڑکی کا خیال آ رہا تھا جو نہ جانے کس وجہ سے یہاں بے ہوش پڑی تھی، وہ بھی اتنے گھنے جنگل میں۔ یہاں تو کوئی انسان آتا ہی نہیں تھا سوائے ڈرائیوروں کے یا چوکیداروں کے جو اس جنگل کی رکھوالی کرتے تھے۔ ہلکا ہلکا اجالا پھیلنے کو تھا۔ پھر میرا ارادہ ناشتہ کرنے کا تھا، تو میں نے کم آبادیوں والے علاقے میں ٹرک روکا اور ناشتہ کرنے کے لیے نیچے اتر گیا۔ میرا ساتھی بھی جب تک جاگ گیا تھا وہ بھی میرے ساتھ ناشتہ کرنے دکان پر چلا گیا۔ اسے دکان پر چھوڑ کر میں نے ایک ٹرے میں ناشتہ رکھا اور واپس ٹرک کے پاس آ گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ لڑکی ابھی تک ہوش میں آئی ہے یا نہیں۔ جیسے ہی میں نے ٹرک کا دروازہ کھولا میں حیران رہ گیا کیونکہ لڑکی تو وہاں تھی ہی نہیں۔ میں نے تو راستے میں ٹرک نہیں روکا تھا، پھر چلتے ٹرک سے وہ بھلا کیسے اتر گئی؟ میں حیرت زدہ سا واپس پلٹ آیا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ ایسا عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ پھر میں اپنے ساتھی کے پاس آ کر ناشتہ کرنے لگا۔ میرے ساتھ والا لڑکا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا، لیکن میرا سارا دھیان اس لڑکی کے غائب ہونے پر تھا۔ اچانک ہی میری نظر ہوٹل کے قریب ایک درخت کے پیچھے چھپے ہوئے وجود پر پڑی تھی۔ اس کے سیاہ بال فضا میں اڑ رہے تھے، سیاہ آنکھیں چھپ چھپ کر مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں جیسے ہی اٹھ کر اس کے پاس گیا تو بہت مشکل سے میں نے اپنی چیخ نکلنے سے روکی کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جو بے ہوش حالت میں مجھے کل رات سڑک پر ملی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا چوٹ کا نشان تھا، ساتھ ہی کپڑے بھی مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ 18-17 سال کی کم عمر اور معصوم سی لڑکی نظر آ رہی تھی، لیکن بے انتہا خوبصورت تھی۔ پھر میں نے اسے دیکھا اور کہنے لگا کہ ناشتہ کرنا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ ہوٹل پر بہت سے لوگ جمع تھے، میں اسے وہاں لے جا کر ناشتہ نہیں کروا سکتا تھا، اسی لیے میں نے اسے ٹرک میں واپس جانے کا اشارہ کیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ پھر میں نے اس کے لیے ناشتے کا آرڈر دیا اور سوچنے لگا کہ شاید یہ ٹرک رکتے ہی یہاں اتر گئی تھی۔ وہ ٹرک کے پچھلے حصے میں چھپی بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ناشتہ رکھ دیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ وہ کون ہے، رات کے آدھے پہر گھر سے کیوں نکلے تھی، تم مجھے بے ہوشی کی حالت میں سڑک کے بیچوں بیچ سے ملی ہو۔ وہ ناشتہ کرتے کرتے اداس ہو گئی اور کہنے لگی، اپنے ظالم چچا کی مار سے بچنے کے لیے میں گھر سے بھاگی تھی۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، بچپن سے ہی چچا چچی کے پاس رہ رہی تھی۔ کل رات مجھ سے ایک غلطی ہوئی تو چچا نے ایک ڈنڈے سے مجھے بری طرح پیٹا۔ یہ دیکھو میرے جسم پر زخموں کے نشان۔
उसने अपने बाजू से कपड़ा हटाया। वहाँ पर नीले रंग के गहरे निशान पड़े थे। यही सोचकर बीच सड़क में मैं गिर गई थी कि अच्छा है किसी ट्रक के नीचे आकर कुचली जाऊंगी तो इस अजाब भरी जिंदगी से जान छूट जाएगी। वो गहरे आंसुओं से रो रही थी। मुझे उसे देखकर तरस आया। फिर मुझे वो कहने लगी कि आप मुझे किसी यतीम खाने में छोड़ दें, मैं वहाँ पर अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार लूँगी, लेकिन वापस चचा के पास हरगिज़ नहीं जाऊँगी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहने लगा, ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करता हूँ। अगर तुम अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जाना चाहती हो तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अभी यहीं चुप कर बैठी रहो। जैसे ही मंजिल करीब आएगी मैं इस ट्रक को वापस अपने घर की तरफ लेकर जाऊंगा। अपने ही शहर में तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करता हूँ। मेरी बात सुनकर वो बहुत शुक्रिया अदा करने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी छाई थी। मैंने उसे कह तो दिया था, लेकिन दरहकीकत मैं ये सोच रहा था कि इतनी जवान लड़की का किसी दूसरी जगह पर रहना ठीक नहीं था, क्योंकि आजकल हालात अच्छे नहीं थे। उस मासूम लड़की के साथ कुछ भी बुरा हो सकता था। यही सोचकर मैंने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। यही सोचकर मैंने उसे ट्रक के पिछले हिस्से में छुपा दिया। जहाँ सामान पहुँचाना था वहीं पर पहुँचाया और एक बार फिर से वापसी के सफ़र पर गामज़न हो गया। वो लड़की मेरे साथ ही थी, इसीलिए उसे लेकर मैं घर आ गया। मेरा नाम अहमद नवाज़ है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। अब्बा भी ट्रक ड्राइवर थे। अचानक उनकी एक हादसे में मौत हो गई तो मैं उनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले चुका था। घर की परेशानियों ने अम्मा को बीमार कर दिया। अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। हम 5 बहन भाई थे। 3 जवान बहनें मुझसे बड़ी थी, जबकि एक सबसे छोटी। अभी तक बहनों की शादियां भी नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से अम्मा शुगर की मरीज़ा बन गई थी। ट्रक के मालिक ने मुझे माहाना तनख्वाह पर ड्राइवरी पर रखा हुआ था। वो तनख्वाह इतनी थी कि बस घर का गुजारा बमुश्किल हो जाता था, लेकिन मेरी बड़ी बहनें भी उस घर को चलाने में मेरा भरपूर साथ दे रही थी। वो तीनों बेचारी घर पर ही सिलाई कढ़ाई वगैरह कर लेती। बहुत मेहनती थी। बचपन से ही उन्होंने मेहनत करना सीख लिया था। मुझे अपने आप पर गुस्सा आता कि मैं इतना क्यों नहीं कमाता कि घर में सुकून से बैठकर रिस्क खिला सकूं। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि आजकल महंगाई के दौर में किसी एक बंदे की कमाई से गुजारा नहीं हो पाता। तभी वो मेरे साथ मिलकर चल रही थी। कितने ही ख्वाब मेरी आंखों में सजे थे। मैं सोच रहा था कि उनकी किसी अच्छी जगह पर शादी करूंगा ताकि जाकर उन्हें रुपए पैसे की परेशानी ना हो। मैं ये भी जानता था कि उस लड़की को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, ये मुझ पर इजाफी बोझ बनेगी। लेकिन फिर भी मेरे घर में भी बहनें थी। मैं किसी लड़की को यूं सड़क पर छोड़कर नहीं जा सकता था। मैं जैसे ही उसे घर लेकर गया तो मेरी बहनें उस खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान थी। उन्हें नहीं मालूम था कि ये पहाड़ों के इलाके से आई है, तभी उसकी रंगत इस कदर सफ़ेद है। अब वो हमारे साथ उसी घर में रहने लगी थी। फिर एक दिन मेरी छोटी बहन मुझसे कहने लगी, भाई ये जो लड़की पश्मीना है, कल ये हमारे कमरे में सोई थी। मैं रात को उठी तो ये कमरे से गायब थी। मैंने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन ये कहीं पर भी नहीं मिली। मैं उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। फिर कहने लगा, हो सकता है कि ये हमारी छत पर हवा की वजह से चली गई हो। वो कहने लगी कि भाई मैंने उसे पूरे घर में देख लिया था और छत पर भी देखा था, लेकिन ये कहीं भी नहीं थी। मेरी छोटी बहन महज 12 साल की मासूम बच्ची थी, इसीलिए मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सोचने लगा कि हो सकता है कि उसकी निगाहों से ओझल हो गई हो, जो कल रात उसे ये घर से गायब मिली थी। तीनों बहनें और अम्मी एक ही कमरे में सोया करती थी, जबकि मैं गर्मी के बायस छत पर सो जाया करता था। एक रात मैं छत की मुंडेर से गली में झांक रहा था। आधी रात का वक्त था जब अचानक मेरी नज़र गली में से गुजरती लड़की पर पड़ी। मैंने उसे देख लिया था। ये वही थी जो हमारे घर में रह रही थी। मुझे इस तरह उसके रात को निकलने पर बहुत गुस्सा आया। मैं सोचने लगा कि अगर मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने उसे यूं घर से बाहर निकलते देख लिया तो हमारे बारे में क्या सोचेगा। यही सोचकर मैं तेज़ी से नीचे आया और उसके पीछे जाने लगा, लेकिन वो तो गली से ही गायब हो गई थी, जैसे कोई भूत गायब हो जाता है। ना जाने वो कहाँ चली गई थी। मैंने सोच लिया था कि सुबह आएगी तो उससे बहस फूस करूँगा,
कि रात को उठकर कहाँ गई थी, लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि वो लड़की उस रात गई तो वापस नहीं आई। मेरी बहनें बार बार कहती, भाई वो लड़की कहाँ चली गई है, लेकिन मैं उन्हें क्या कहता। उसने तो मेरा सर शर्म से झुका दिया था, क्योंकि मैं ही उसे इस घर में लेकर आया था, और वो आधी रात को इस घर से भाग गई थी। मैं नफरत से जलने लगा था कि उसने मेरे सामने मासूमियत और मजलूम होने का नाटक किया था। अब मैं किसी लड़की पर एतबार नहीं करूँगा। अब मैं सारा ध्यान अपने काम पर लगा रहा था। मैं सोचने लगा कि 4 पैसे जमा हो जाएंगे तो बहन को रुखसत कर दूंगा, तीनों को न सही किसी एक की तो शादी कर दूंगा। यही सोचकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में आधी आधी रात को काम करने लगा। कभी कभी तो मुझे टूर पर जाते हुए 3-3 दिन भी हो जाते थे। फिर एक दिन मैं 3 दिन बाद घर आया तो मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी कि अब रात को आते हुए एहतियात किया करो, क्योंकि मोहल्ले वाले कई लोगों ने एक बदरूह को कब्रिस्तान जाते हुए देखा है। अपनी बहन की ये बात सुनकर मैं बेसाख्ता हंसा था। मैं सोचने लगा कि ज़रूर ये लोगों की कोई नई मन घड़त अफवाह होगी। हमारी गली ख़त्म होने के साथ ही ये कब्रिस्तान शुरू हो जाता था। ये बहुत पुराना कब्रिस्तान था। अक्सर लोगों को यहाँ पर अजीब व गरीब चीज़ें दिखाई देती थी, लेकिन मैं तो आधी रात को घर लौटता था। आज तक मेरा वास्ता किसी ऐसी चीज़ से नहीं पड़ा था। मेरी बहनें मुझे डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं ज़रा भी नहीं डरता था। दर हकीकत मुझे तो ऐसी चीज़ों पर यकीन ही नहीं था। फिर उस रात में अपना टूर पूरा करके घर वापस आया तो मुझे घर लौटते लौटते रात का 1 बज गया था। मैं कब्रिस्तान वाली गली से गुजरता हुआ घर की तरफ जा रहा था। अचानक ही मुझे कब्रिस्तान में मौजूद दरख्त से 2 सफ़ेद पाँव लटकते दिखाई दिए। उनमें मौजूद सुनहरी पायल साफ नज़र आ रही थी। मैं हैरान हुआ कि भला रात के इस पहर इस दरख्त पर कौन हो सकता है। तभी मैं थोड़ा आगे आ गया। मेरी आंखें हैरत से फट गई। ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की पश्मीना थी जो एक मजलूम लड़की का रूप धार कर मेरे सामने आई थी। मुझे उसे देखकर बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, तुम इस वक्त कब्रिस्तान में क्या कर रही हो और घर से भागने का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि तुमने मुझे धोखा दिया और आधी रात को घर से फरार हो गई। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसी थी। फिर कहने लगी, नहीं, मैं तो किसी भी ऐसी जगह की तलाश में थी, जभी तो तुम्हारे घर से भागकर यहाँ आ गई हूँ। अगर 2-4 दिन तुम्हारे घर पर रुकती तो मोहल्ले के सभी लोगों ने मुझे पहचान लेना था। मैं उसकी बात पर उलझकर उसे देख रहा था। फिर वो कहने लगी, मुझे ऐसे ही ये जगह अच्छी लगती है, मैं शुरू से यहाँ रहने की आदी हूँ। मैं उससे कहने लगा कि देखो, ये जगह ख़तरे से खाली नहीं है। एक तो ये कब्रिस्तान है, दूसरी तरफ यहाँ रात को सन्नाटा रहता है। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर बड़े खौफनाक तासुरात आए और कहने लगी, मेरे साथ जो गलत करेगा मैं उसे नोच कर खा जाऊंगी। तुम नहीं जानते मैं कितनी खतरनाक हूँ। तभी वो छलांग लगाकर दरख्त से नीचे उतरी और कहने लगी, यहाँ मैं अपना एक ख़ास अमल पूरा करने आई हूँ। जैसे ही वो अमल होगा तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मगर मैंने उसे ताज्जुब से देखा और कहने लगा, इसका मतलब था कि तुमने मुझसे वो सब झूठ कहा था। फिर तुम एक मजलूम लड़की नहीं बल्कि बहुत तेज़ तरार, चल्लाक और मक्कार लड़की हो। तो उसने मुझे नज़र भर कर देखा। फिर कहने लगी, हाँ, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं एक मजलूम लड़की हूँ, लेकिन ये भी एक सच है कि मैं एक जिन्नज़ादी हूँ। मैं यहाँ एक ख़ास मकसद से आई हूँ। मैं बेयकीनी से उसे देख रहा था। फिर कहने लगा, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं तुमसे डरने वाला नहीं। उसने मेरी आंखों में बेयकीनी देखी तो वो कहने लगी, अच्छा, अभी तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। ये कहकर वो अचानक मेरी नज़रों से गायब हो गई। मैं दूर तक अंधेरे में उसे देखने लगा था, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं था। अचानक ही पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पीछे मुड़ा तो एकदम मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि मेरे पीछे वही जिन्नज़ादी खड़ी थी। उसकी लाल होती आंखें देखकर मैं खौफ से थर थर कांप रहा था। सोच भी नहीं सकता था कि यह अजीब सी मखलूक जो मुझे धोखा देकर यहाँ आई थी, वो एक जिन्नज़ादी बनकर इस कब्रिस्तान में रह रही थी। मोहल्ले वालों ने सच में ही उसे रात को घूमते फिरते देखा था।
मेरे चेहरे पर खौफ देखकर वो कहने लगी, घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाती हूँ जो मुझे तकलीफ देने आते हैं, जबकि तुमने तो मुझे उस खास जगह पर पहुंचाया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर तुम मेरे एक काम में मदद करो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगी कि तुम्हारी सारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। मुझे किसी ऐसे ही शख्स का साथ चाहिए था। तुम आदमजाद इंसानों में से बहुत अच्छे इंसान हो, क्योंकि मेरा वास्ता कई किस्म के इंसानों से पड़ा। सबने मुझ पर बुरी नज़र डालने की कोशिश की तो मैंने उनका हश्र बिगाड़ दिया, लेकिन तुमने बहुत इंसानियत का मुजाहिरा किया और मुझे अपने साथ घर पर लेकर आए। मुझे ऐसे लगता है तुम मेरे काम में ज़रूर मेरा साथ दोगे। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत घबराया, फिर भी उससे कहने लगा कि कैसा काम? जन्नात के काम से भला इंसानों का क्या ताल्लुक हो सकता है? फिर वो कुछ सोचते हुए कहने लगी कि देखो, बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर जन्नात नहीं जा सकते, लेकिन अगर इंसान वहाँ जाए तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। मुझे एक बहुत लंबे सफ़र पर जाना है। वो जगह बहुत खौफनाक और दुश्वार है, लेकिन तुम एक मजबूत इंसान हो। मुझे उम्मीद है तुम मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दोगे। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो ये सोच लेना कि तुम्हारी किस्मत बदलना मेरा काम है। इसलिए अच्छी तरह से सोच समझ कर फैसला कर लो। अगर अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो मेरा काम करने में मेरा साथ दो। कल मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगी। ये कहकर वो जिनज़ादी मेरे सामने से गायब हो गई। बहुत देर तक मैं सकते की कैफियत में खड़ा रहा। अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो खूबसूरत नज़र आने वाली कम उम्र लड़की एक जिनज़ादी थी। घर आया तो मेरा जिस्म बहुत तप रहा था। अम्मा और बड़ी बहनें मुझे देखकर परेशान हो गई। थोड़ा बहुत खाना खाया और खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया। नींद आंखों से कोसों दूर थी। सोचने लगा कि वो जिनज़ादी ना जाने मुझे ऐसे कौन से काम का कहेगी। कहीं वो कोई ख़तरनाक काम ना हो जिसमें मेरी जान चली जाए। पूरा दिन इसी कश्मकश में गुजरा था। सोचता था कि उस जिनज़ादी का काम करके अपनी किस्मत बदल लूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सा ट्रक खरीदना मेरा ख्वाब था। लेकिन ट्रक की कीमत लाखों में थी। मैं सिर्फ सोच ही सकता था। दूसरी तरफ बहनों की शादियां भी करनी थी। उनकी शादी के लिए एक पाई भी मेरे पास नहीं थी। यही सोचकर मेरा पूरा दिन गुजर गया। आखिरकार मैंने उस जिनज़ादी का काम करने की ठान ली। आधी रात के उस पहर मैं उस दरख्त के नीचे खड़ा था। अचानक ही मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई, लेकिन वो चलने वाला नज़र नहीं आया था। तभी मैं खौफ से कांप कर रह गया जब मैंने ज़मीन पर पड़ने वाला एक निस्वानी साया देखा। इसका मतलब था कि वो जिनज़ादी मेरे आस पास ही मौजूद थी। उसने जैसे मेरे चेहरे पर लिखी तहरीर पढ़ ली थी। इसीलिए मुझे कहने लगी, मुझे मालूम था कि तुम ज़रूर आओगे। तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम मेरे काम में मेरा साथ देने के लिए तैयार हो। मुझे इस बात की खुशी हुई है। कल रात को तुम अपनी सवारी लेकर आना, उसी में हम दोनों अपनी मंजिल की जानिब जाएंगे। फिर वो कहने लगी, इस काम में बहुत दिन भी लग सकते हैं, इसलिए तुम अपने घर वालों को बता कर आना कि मैं एक लंबे सफ़र पर जा रहा हूँ। वापसी का कुछ पता नहीं है। फिर मैंने उस जिनज़ादी के कहने पर ऐसा ही किया। मेरी बहनें और अम्मा परेशान हो गई, क्योंकि मेरे सिवा कोई दूसरा मर्द घर पर मौजूद नहीं था। मुझे उनकी बहुत फिक्र भी थी, लेकिन उनकी खातिर ही तो मैं ये रिस्क उठाने के लिए तैयार था। मैं एक जिनज़ादी का काम करने के लिए उसके साथ एक नामालूम मुकाम पर जा रहा था, और ना जाने मुझे कहाँ पर लेकर जाने वाली थी। मैंने एक ट्रक के मालिक से कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए ट्रक चाहिए। वो मुझे अच्छी तरह जानता था। उसे मालूम था कि मैं एक मेहनत करने वाला इंसान हूँ, इसीलिए उसने मुझे मना नहीं किया और अपना ट्रक मेरे हवाले कर दिया। फिर जैसे ही आधी रात हुई, मैं उसी मुकाम पर पहुँच गया तो यहाँ पर वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। आज उसने लाल रंग का एक सूट पहन रखा था। पायल की खौफनाक छन छन मेरे असाब पर बुरी तरह सवार हो रही थी। लाल रंग का जोड़ा पहने वो जिनज़ादी मेरे साथ ट्रक पर सवार थी। अगर कोई रात के उस पहर उसे मेरे साथ ट्रक पर देख लेता तो ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचता। लेकिन अचानक से ख्याल आया कि हो सकता है ये मेरे अलावा किसी को दिखाई ना देती हो। अब वो मुझे रास्ते बताती जा रही थी और मैं उसके कहने पर नामालूम मुकाम की तरफ ट्रक चलाए जा रहा था। वो इस सफ़र में बड़ी खुश दिखाई दे रही थी।
اس کے اندر ایک جوش بھرا تھا، نہ جانے وہ کیا کام کرنے والی تھی۔ میں نے دیکھا وہ ایک خطرناک راستے کی طرف مجھے جانے پر مجبور کر رہی تھی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے پتھریلے اور دشوار گزار راستے دیکھے تھے، لیکن ایسا گھنا جنگل اور یہاں ٹرک لے کر جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میرے اعصاب بری طرح شل ہو رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار آواز کے ساتھ ٹرک بند ہوا۔ یوں ٹرک کو رکتا دیکھ کر وہ بڑے عجیب انداز میں مسکرائی، پھر کہنے لگی، اس سے آگے یہ نہیں جا سکتا، اس نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے، لیکن تم پریشان مت ہو، اب ہم پیدل ہی پیدل منزل کی جانب چلیں گے۔ اس جنگل میں نہ تو چاند کی روشنی تھی اور نہ ہی یہ معلوم ہو رہا تھا کہ کتنی رات بیت گئی ہے، بس چاروں طرف اندھیرا چھایا تھا اور جانوروں کے چنکارنے کی آوازیں فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ وہ بڑی شان سے چلی جا رہی تھی۔ میری تھکن سے بری حالت ہوئی تو میں نے آگے چلنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم جن زادی ہو اسی لیے تم میں طاقت مجھ سے کہیں زیادہ ہے، لیکن میں انسان ہوں اس لیے تھک گیا ہوں۔ یہ کہہ کر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا تھا۔ درخت سے ٹیک لگاتے ہی میں گہری نیند میں چلا گیا۔ سوتے سوتے نہ جانے کتنی دیر بیت گئی، اچانک ہی مجھے لذیذ کھانے کی خوشبو نے جگا دیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو حیران رہ گیا، وہ جنزادی میرے سامنے کھانا لے کر کھڑی تھی۔ وہ کھانا اتنا لذیذ تھا، اس ویران جگہ میں کہاں سے لے کر آئی تھی؟ بھوک نے مجھے کچھ بھی سوچنے نہیں دیا، میں بے تاب ہو کر وہ کھانا کھا رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہی جسم میں جیسے توانائی سی بھر گئی، اب دوبارہ سے میں تازہ دم ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر سے میں جنزادی کے ساتھ اس کی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی تھوڑی دور گیا، اچانک ہی تیز روشنی سے میرے وجود کو کچھ ہوا۔ اس کا مطلب تھا کہ جنات کی بستی آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ شاید اپنے ہی کسی خاص مقام پر مجھے لے کر جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ بستی نظر آنا شروع ہوئی، اچانک وہ ایک جگہ رک گئی اور کہنے لگی، اب تم اس بستی میں جاؤ گے، میرا وہاں جانا منع ہے۔ میں اس کی بات سن کر خوف زدہ ہو گیا اور اس سے کہنے لگا، نہیں نہیں، میں بھلا کیسے اس بستی میں جا سکتا ہوں؟ میں ایک انسان ہوں، جبکہ وہ بستی تو جنات کی ہے۔ وہ اداس ہو کر کہنے لگی، کاش میں اس بستی میں جا سکتی، اگر میں اپنے باپ سے ایک جھوٹ نہ کہتی تو آج میں اتنی مشکل میں نہ ہوتی۔ کیسا جھوٹ؟ میں نے اس سے حیرانگی سے پوچھا۔ پھر وہ کہنے لگی، میرا باپ میری شادی ایک جن ذات سے کر رہا تھا جو مجھے سخت ناپسند تھا۔ اس سے جان چھڑوانے کے لیے میں نے اسے کہہ دیا کہ میں کسی انسان سے محبت کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان کسی جن زادی سے شادی کرے۔ اگر ایسی بات ہے تو تم جاؤ اور اسے یہاں لے کر آؤ، اس بستی میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری شادی اس سے کروا دوں گا۔ میں نے تو یہ بات جھوٹ کہی تھی، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اس سلسلے میں تم میری مدد کر سکتے ہو۔ تم وہاں جا کر کہہ دو کہ میں جن زادی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تو میرا باپ مجھے واپس اسی بستی میں بلا لے گا۔ تم صرف یہ کہنا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اگر وہ شادی کا کہے گا تو میں یہ بات کسی بھی طرح سنبھال لوں گی۔ اس جن زادی کی بات مان کر میں مشکل میں بھی پھنس سکتا تھا، لیکن اب میں یہاں جب آ ہی گیا تھا تو اس جھوٹ میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ تبھی میں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خاطر جھوٹ بولنے کو تیار ہوں۔ وہ یہ بات سن کر نہایت خوش ہوئی، اب تیز تیز اڑتی ہوئی بستی کی طرف جا رہی تھی۔ خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ جیسے ہی میں بستی میں تھوڑی آگے گیا، میں سمجھ گیا کہ یہاں پر رہنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ آس پاس جن ذات گھوم رہے تھے، ان کے بچے بھی انہی کے جیسے تھے۔ جیسے ہی میں اس جن زادی کے ساتھ اس کی بستی میں داخل ہوا، سارے جن زاد مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں ان کا دشمن ہوں۔ تبھی جن زادی کا باپ گرجتا ہوا آیا اور کہنے لگا، آخر کار تم اس آدم ذات کو اپنے ساتھ لے آئی۔ تم جانتی ہو مجھے آدم ذات سخت ناپسند ہے، اب کیا یہ ہماری بستی میں رہے گا؟ میں ان کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر دہل گیا۔ تبھی جن زادی بھی غصے سے کہنے لگی کہ ابا، آپ کی خواہش کے مطابق میں اسے اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں۔ یہ اپنی دنیا چھوڑ کر میرے ساتھ آ گیا ہے، اب میں یہیں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اب مجھے یہاں رہنا پڑے گا۔ بھلا جن زادوں کی بستی میں کیسے رہ سکتا تھا؟ اس بات نے مجھے بے حد پریشان کر دیا۔ پھر وہ جن زادہ کہنے لگا، تم ضرور اسے کسی چیز کا لالچ دے کر یہاں لائی ہوگی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آدم ذات کس قدر لالچی ہوتا ہے۔ اس بات میں تو حقیقت تھی کہ میں بنا لالچ یہاں نہیں آیا تھا۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور برستے ہوئے کہنے لگا،
खबरदार, जो हमारी बस्ती के खजाने की तरफ आंख उठाकर भी देखा। मैं तुम जैसे इंसानों की नीयत को अच्छी तरह पहचानता हूँ। ठीक है, कल रात में अपनी बेटी जिनजादी की तुम्हारे साथ शादी करूँगा, उसके बाद तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं उसकी बात पर खामोश रहा, लेकिन दिल में सोच रहा था कि जिनजादी से बात करूँगा। मैं यहाँ इस मकसद के लिए नहीं आया था कि मैं हमेशा के लिए यहाँ रह जाऊँ। अब मैं सख्त परेशान था। उन्होंने रात गुजारने के लिए मुझे कोठरी में बंद कर दिया। कोठरी में एक छोटा सा सुराख था। मैं वहाँ से बाहर के मनाजिर देखने लगा। मैंने देखा हर जगह आग के अलाव चल रहे थे। शायद उनके खाने पीने का टाइम हो रहा था। वहाँ हर कोई गोश्त भूनने में लगा था। मैंने सुना था कि जिन्नात गोश्त खोर होते हैं, वो गोश्त खाना पसंद करते हैं। गोश्त की भीनी भीनी खुशबू मेरी भी भूख जगा रही थी। मैं सुराख से आंख लगाए खड़ा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने फौरन ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने वही जिनजादी थी। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। वो यकीनन मेरे लिए लाई थी। मैं उससे कहने लगा कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हें मुझसे ज़रूरी काम है, लेकिन तुम्हारे बाप ने तो कहा है कि वो कल मेरी शादी तुमसे कर देगा। देखो, मैं यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि मेरे घर वाले पीछे अकेले हैं। उन्हें सिवाय मेरे सहारे की दुनिया में कोई दूसरा सहारा नहीं। वो कहने लगी, परेशान मत हो, तुम्हारे घर वालों के दिन बदलने वाले हैं, बस तुम मेरे बाप की बात मानते रहो। याद रखना, इस बस्ती में एक बहुत कीमती खजाना छुपा है। अगर वो किसी इंसान के हाथ लग गया तो समझ लो कि उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर तुम चंद दिन मेरे साथ यहाँ रुकोगे तो हो सकता है उस खजाने के बारे में तुम्हें कुछ मालूमात मिल जाए। तुमने मेरा इतना काम किया है, मैं चाहती हूँ कि तुम जब वापस जाओ तो तुम यहाँ से बहुत अमीर होकर जाओ। दौलत का लालच करना मेरे लिए बहुत परेशानी का बायस बन गया था। वो जिनजादी मुझे अपने साथ शादी पर मजबूर कर रही थी। यहाँ रहकर मैं उनकी बात मानने से इनकार नहीं कर सकता था। इसी परेशानी में मुब्तला होकर उस काल कोठरी में जाने मुझे कब नींद आ गई, मुझे मालूम ही नहीं हुआ। जब आँख खुली तो अजीब सा शोर था। मैंने उठकर उसे सुराख से बाहर देखा तो हैरान रह गया। सारे जिन एक जगह जमा थे। शायद उनका सरदार को यहाँ ऐलान करने वाला था। अचानक ही उस कोठरी का दरवाज़ा खुला। मैंने देखा मेरे सामने एक जिन ज़ात खड़ा था जो आग बरसाती निगाहों से मुझे घूर रहा था। मैं उसकी नज़रों से खाइफ समझ नहीं पाया कि उसकी नफ़रत की वजह क्या है। तभी वो कहने लगा, पश्मीना से मैंने प्यार किया था, तुमने मेरी जगह ले ली है। देखना, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसी की ख्वाहिश थी कि वो किसी आदमजात से शादी करेगी, ना कि किसी जिन जात से। लेकिन देखना, मैं तुम्हें इतना सताऊंगा कि तुम खुद उसे यहाँ से छोड़कर फरार हो जाओगे। वो खतरनाक धमकियाँ देता मुझे बाहर ले गया। तभी सरदार ने सबके सामने ऐलान किया कि आज तक हमारी बस्ती में कुछ ऐसा नहीं हुआ जो आज होने जा रहा है। आज हमारी बस्ती की एक जिनजादी एक आदमजात के साथ शादी करने जा रही है। सब जोरों शोर से तालियां बजा रहे थे, लेकिन मैं बौखलाया खड़ा था। फिर जिनजात के सरदार ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा, क्यों आदमजाद, तुम्हारे साथ जिनजादी ने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की? क्योंकि हम नेक जिन्नातें किसी इंसान को तंग करते हैं और ना ही उसके साथ बुरा सलूक करते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम ज़बरदस्ती जिनजादी के साथ शादी करो। उस सरदार की बात सुनकर दिल में ख्याल आया कि उसे साफ साफ बता दूं कि वो धोखे से मुझे यहाँ लेकर आई है, लेकिन दूर जिनजादी मुझे इशारे से कह रही थी कि तुमने ऐसा कुछ नहीं कहना। मैं खौफ में मुब्तला सच बोल ही नहीं पाया और सरदार से कह दिया कि नहीं, मैं इस जिनजादी से मोहब्बत करता हूँ और इसीलिए उसकी मोहब्बत में इस बस्ती में चला आया। ठीक है, आज रात पूरे चांद की 14वीं तारीख को तुम्हारी उस जिनजादी के साथ शादी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद तुम अपनी वापस दुनिया में नहीं जा सकोगे, क्योंकि हमारी बस्ती के कई राज तुम्हें मालूम हो जाएंगे। अगर तुम वापस उस दुनिया में गए तो हमें डर है कि तुम हमें कोई नुकसान न पहुंचा दो। मैंने उनसे वादा कर लिया था कि मैं उनका वफादार बनकर रहूँगा। अब मैं वापस उसी कोठरी में आ गया था। जिनजादी बहुत खुश थे, लेकिन मैं बहुत परेशान था। बार बार मुझे अपनी माँ और बहनों का ख्याल आ रहा था। ना जाने मेरे पीछे उनका ख्याल रखने वाला कोई होगा भी या नहीं। इससे तो बेहतर था कि ऐसे ही ट्रक चलाकर अपना गुजारा कर लेता। दौलत की लालच ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया था। किस्मत बदलने का ख्वाब लेकर जिनजादी के साथ आया था, लेकिन उसने तो उल्टा मुझसे अपना फ़ायदा हासिल किया था। जैसे ही आधी रात हुई, चांद की रोशनी उस बस्ती पर छाई थी। आज जिनजादों की महफिल जमा थी। शायद जिनजादी की शादी की खुशी में वो सब जश्न मना रहे थे। फिर 2 जिनजाद आए और मुझे उस कोठरी से निकाल कर बाहर ले गए।
मैंने देखा सामने वो जिंदादी लाल जोड़े में मलबूस निक सिक से तैयार मुझे मुस्कुराती नज़रों से देख रही थी, लेकिन मैं खुश नहीं था। सोच रहा था कि अभी यहाँ से भाग जाता हूँ, कोई ऐसा मौका मिले कि यहाँ से फरार होने का रास्ता मिल जाए। लेकिन जिनजादों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। वापसी की राह फरार नहीं बची थी। मुझे परेशान देखकर वो मेरे करीब आई और कहने लगी, ये सिर्फ एक झूठ मूठ की शादी होगी और कुछ नहीं। जैसे ही मुझे इस बस्ती में घर मिल जाएगा मैं यहाँ से तुम्हें भगा दूंगी। उसकी बात पर मुझे थोड़ा हौसला मिला। तभी सरदार ने अपने हाथों से मेरी और उस जिनजादी की शादी करवा दी। फिर वो कहने लगा, चूंकि ये एक आदमजाद है, हमें इस पर मुकम्मल भरोसा नहीं, इसलिए 2 जिनजाद इसके पहरे के तौर पर रखवाली करेंगे। मैं ठंडी सांस भर कर रह गया। मुझे ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आई कि मैं यहाँ से निकल सकता, और वो जिनजादी मेरे ऊपर मुसल्लत रहने लगी थी। मुझे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करती, लेकिन मेरे जहन में बार बार अम्मा और बहनों का ख्याल आता रहा। मैं सोचने लगा कि ना जाने कितने दिन बीत गए हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पर दिन का पता चलता और ना ही रात का। एक अंधेरा सा था जो हर वक्त छाया रहता। फिर एक दिन जिनजादी मेरे पास आई और कहने लगी, आज रात सरदार की बहुत बड़ी जन्मदिन की तकरीब है। उस खुशी में सरदार सारे जिनजादे और जिनजादियों को एक ख़ास कीमती तोहफा अता करता है। मुझे यकीन है वो तुम्हें भी ज़रूर कोई ना कोई बड़ा इनाम देगा, लेकिन तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ। तुम्हें उस संदूक पर नज़र रखना होगी जो सरदार के पास जिनजाद उनके महल में लेकर आएंगे, क्योंकि अगर वो संदूक हाथ लग गई तो यूं समझ लेना तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैं दिल में सोचने लगा कि ऐसा करना इतना आसान नहीं था। जिन्नात की बस्ती में रहकर उन्हीं का खजाना चोरी करना बहुत बड़ी बात थी। वो जिनजादी कहने लगी, फिक्र ना करो, मेरी ताकत तुम्हारे साथ होगी। जब वो जश्न मनाने में मसरूफ़ होंगे, मैं तुम्हें एक ऐसा मौका फराहम करूंगी कि खुद ब खुद तुम्हारे रसाई संदूक तक हो जाएगी। अब मैं एक उम्मीद पर बैठ गया था। फिर मैंने देखा जब पूरी बस्ती रोशनी से जगमगाने लगी। अंधेरे में ये रोशनियां बहुत भली महसूस हो रही थी। लजीज खानों की खुशबू और दिल फरेब महक ने उस बस्ती के माहौल को बदल डाला था। मैं उस घर में कैदी की तरह की जिंदगी गुजार रहा था। फिर एक जिनजाद मेरे पास आया और कहने लगा, आज तुम आज़ाद हो, हमारी बस्ती में जा सकते हो। सरदार का हुक्म है कि तुम्हें भी इस तकरीब में शिरकत करनी है। अब मैं भी उनके साथ शरीक था। अपने आप में अजीब महसूस कर रहा था। फिर जैसे ही सालगिरह की तकरीब ख़त्म हुई, सरदार बारी बारी जिनजादे और जिनजादियों को अपने पास बुलाने लगा। मैंने देखा वो किसी को सोने का लाकर दे रहा था, किसी को सोने का कंगन, तो किसी जिनजादी को अंगूठी तोहफे में दे रहा था। फिर उसने मुझे अपने पास बुलाया और एक पोटली थमा दी। वो लाल रंग की पोटली थी। मैं हैरान रह गया कि सबको तो वो हीरे मोती चांदी के जेवरात दे रहा था और मेरे हिस्से में सिर्फ ये पोटली आई थी। सारे जिनजाद ज़ोर ज़ोर से कह के लगा रहे थे। मुझे उनका हंसना बुरा लगा था। इसका मतलब कि सरदार ने मेरी बेइज्जती की थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। अब मैंने जिनजादी की बात पर अमल करने का सोचा कि हर हाल में मुझे वो संदूक चुराना है जिसमें से सरदार वो सारे जेवरात निकाल कर जिनजादों में बांट रहा था। मैंने देखा जिन्नात पहरेदार की तरह उस संदूक के पास खड़े थे। फिर लजीज खाने की खुशबू चारों तरफ फैल गई। क्योंकि खाने का वक्त हो गया था, सब खाना खाने दौड़े थे। मैंने देखा वो पहरेदार संदूक के आस पास अभी भी मौजूद थे। तभी जिनजादी उनके पास आई और कहने लगी, तुम जाओ खाना खाने, मैं इसका ख्याल रखूंगी। वो जिनजाद उसका शुक्रिया अदा करते हुए खाना खाने चला गया। अचानक ही जिनजादी ने एक कील निकाली और दूसरे खड़े जिन्नात के जिस्म में घुसा दी। वो खड़े खड़े बेहोश होकर नीचे गिर गया। फिर उसने जल्दी से मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, जल्दी करो, जितना ख़जाना इस संदूक से निकाल सकते हो निकाल कर यहाँ से फ़रार हो जाओ। याद रखना, अभी तुम्हारे पास ये वक्त है, उसके बाद ये वक्त हाथ से निकल जाएगा। मेरे हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। मुझे डर था कि कहीं वो जिनजादे मुझे ऐसा करते देख न ले। जैसे ही मैंने संदूक खोला, मेरी आंखों में गोया हीरे जगमगाने लगे, क्योंकि वो तो पूरा ही जेवरात से भरा था। इतना खजाना तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मैं जल्दी जल्दी उसी पोटली में खजाना भरने लगा। वो ऊपर तक भर चुकी थी। फिर जिनजादी मेरा हाथ पकड़कर मुझे बस्ती से बाहर ले गई और कहने लगी, अब यहाँ से आगे का सफ़र तुम खुद तय करो, क्योंकि मैं यहाँ जिन्नात को काबू करूँगी कि वो तुम तक ना पहुँच पाए। मैं बुरी तरह घबरा गया। उस खजाने को चोरी करके मैं अकेला इस जंगल से कैसे निकल सकता था? मुझे तो रास्ता भी नहीं मालूम था, ना ही मुझे याद था मैं कहाँ से आया था।
फिर मैं बगैर सोचे समझे एक जानिब चल दिया, पसीने से शराबुर वजूद लिए हाँफते कांपते कदमों के साथ बस में एक जानिब ही चले जा रहा था। कभी मुझे ऐसा महसूस होता कि अभी वो जिनज़ादे मेरा पीछा करते मुझ तक पहुंच जाएंगे, फिर यकीनन मेरी किस्मत में मौत लिखी होनी थी। चोरी करने की मुझे बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली थी। मैं जितनी तेज़ दौड़ सकता था उतना ही भागता जा रहा था। भागते भागते मेरा बुरा हाल हो गया तो मैं थक कर दरख्त के नीचे जा बैठा। उस कीमती ख़जाने को मैंने अपने पास संभाल कर रखा था। बैठे बैठे न जाने कब आँख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। होश आया तो किसी के चीखने की आवाज़ें सुनी थी। मैंने देखा बहुत सा हुजूम मेरे ऊपर जमा था। उस हुजूम को देखकर मैं अपने होश व हवास में लौट आया। मेरे होशान खता हो गए क्योंकि बस्ती के सारे जिन्नात को मेरी उस चोरी का इल्म हो गया था। वो जिनज़ादी ही थी जो चीख चीख कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो सारे जिनजात मुझ पर हावी होना चाहते थे। मैं अपने अंजाम का सोचकर डर गया। मैं जानता था कि अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। फिर इससे पहले कि वो जिनज़ादे मुझे घसीटते हुए अपने साथ ले जाते, अचानक ही सरदार की आवाज़ ने सबको ऐसा करने से रोक दिया। सरदार कहने लगा, क्यों आदमजाद, तुमने तो वफादारी का वादा किया था, फिर आखिरकार तुमने दिखा दी ना अपनी असलियत। तुम हमारे जिन्नात का ख़जाना चुराने आए थे। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता अचानक वो जिनज़ादी आगे बढ़ी और कहने लगी, इसमें इस आदमजाद का कोई कसूर नहीं। इसे मैंने ही अपने साथ आने पर मजबूर किया था और ख़जाने का लालच देकर अपने साथ लाई थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे बाप ने मुझे बस्ती से निकाल दिया था। मैं दुनिया में भटकती फिर रही थी। यह मुझे अपने साथ घर पर ले गया। मैंने इसके घर के हालात देखे जो इंतहाई गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैंने दोबारा बस्ती में जगह बनाने के लिए इसे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। इसमें इसका कोई कसूर नहीं। अगर सज़ा देनी है तो सज़ा की मैं मुस्तहिक हूँ, ना कि यह आदमजाद जिसे मैंने ही इस काम पर मजबूर किया है। सरदार कहने लगा, तुम दोनों ने हमें धोखा दिया है, इसीलिए इस बस्ती में तुम दोनों नहीं रहोगे। फिर वो जिनज़ादी कहने लगी, ठीक है, मेरे हिस्से का ख़जाना इस आदमजाद के पास रहेगा, क्योंकि इस ख़जाने को पाने के लिए बाकी जिनज़ादों की तरह मैंने भी उतनी ही मेहनत की थी। सरदार ने उसकी बात मान ली थी। जिनज़ादी का बाप कहने लगा, सरदार से माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें वापस बस्ती में बुला लेगा। लेकिन वो खामोश थी। फिर वो सब बस्ती में लौट गए। मैंने वो ख़जाना जिनज़ादी को दिया और कहने लगा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे लिए इतना बहुत है कि मैं वापस दुनिया में जा रहा हूँ अपनी, इसलिए मैं ये ख़जाना नहीं रख सकता, जिसकी वजह से तुम्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है। फिर वो जिनज़ादी कहने लगी, पहले मैंने अपने बाप से झूठ कहा था कि मैं किसी आदमजाद से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन ये अब झूठ नहीं, वाकई में मुझे किसी इंसान से मोहब्बत हो गई है, और वो कोई इंसान और नहीं बल्कि तुम ही हो। मैं हैरत से खड़ा सुन रहा था, समझ नहीं आई कि क्या कहूँ। फिर वो कहने लगी, मैं तुम्हें दूर दूर से ही देखती रहूँगी, बस तुम मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले चलो। अपनी खुशी से ये ख़जाना तुम्हें दे रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं जब चाहूँ दुनिया के किसी कोने से कोई भी ख़जाना हासिल कर सकती हूँ। अब मैं चुपचाप उसे अपने साथ लेकर घर आ गया था। फिर वो उसी पुराने कब्रिस्तान में रहने लगी और मैं घर आ गया था। अम्मा बहनें मुझे देखकर खुशी से निढाल होकर कहने लगी, भाई हम तो कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। फिर मैं हैरत से उन्हें कहने लगा, मुझे गए हुए कितने दिन हो गए थे। तो मेरी बात सुनकर वो हैरान हुई। फिर कहने लगी, आप तो 1 महीने का बोल गए थे, लेकिन 3 महीने में वापस आए हैं। मैं अम्मा से कहने लगा कि आप जल्द इन तीनों की शादी की तैयारियां करें, क्योंकि मैं इनकी शादी एक साथ करना चाहता हूँ। फिर मैंने बड़ी धूमधाम से अपनी बहनों को रुखसत कर दिया था। मुझे इस बात की खुशी थी कि वो बहुत अच्छे घराने में शादी करके रुखसत हुई थी। मैंने अपने लिए एक बहुत बड़ा ट्रक खरीदा और उसे चलाने लगा। मेरे घर के हालात बदल गए थे। फिर एक दिन उस जिनज़ादी से मिलने उसी के पुराने कब्रिस्तान में पहुंच गया। फिर उसे कहने लगा, अगर तुम चाहो तो मेरे घर में वैसे ही रह सकती हो जिस तरह तुम एक इंसानी शक्ल में रह रही थी, मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं। तो वो कहने लगी, नहीं, मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग मुझे पहचान जाएंगे। बाज़ लोगों के पास ऐसी ताकत होती है कि वो जिन्नात को महसूस कर सकें। तुम्हें मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ेगी। पहले भी तुमने मेरी वजह से बहुत नुकसानात उठाए हैं। अभी भी मैं आधी आधी रात को उसके पास मिलने चला जाता हूँ। इस बात की खबर किसी को नहीं है, लेकिन अक्सर लोगों ने मुझे पुराने कब्रिस्तान में आधी रात को जाते हुए देखा है। वो नहीं जानते कि वो जिनज़ादी मुझ पर आशिक है। कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी उसके लिए मोहब्बत बसी है। फिर एक दिन मैं उससे मिलने गया
تو وہ میرے سامنے نہیں آئی۔ میں اسے پکارتا رہ گیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا۔ میں پوری رات اس کا انتظار کرتا رہا۔ بالآخر صبح کا اجالا پھیلا تو واپس گھر آ گیا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ پھر دوسری رات میں سویا تو اچانک مجھے خواب میں وہی جن زادی نظر آئی۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، میرا باپ مجھے واپس لے گیا ہے، کیونکہ اس نے عمل کر کے یہ معلوم کر لیا تھا کہ میں انسانوں کی دنیا میں بالکل اکیلی اور تنہا اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم جنات صرف اپنی بستی میں ہی خوش رہتے ہیں، کیونکہ وہاں ہم جیسے ہی ہمزاد ہوتے ہیں۔ اب تم بھی مجھ سے ملنے اس پرانے قبرستان میں نہ آنا، کیونکہ میں یہاں بہت خوش ہوں۔ اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ پسینہ پسینہ ہوتے وجود کے ساتھ میں یہ سوچنے لگا کہ آخرکار مجھے معلوم ہو ہی گیا کہ وہ جن زادی اپنے جنات کی بستی میں واپس چلی گئی تھی۔ اس قیمتی خزانے کا کچھ حصہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ تینوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں راج کر رہی ہیں۔ میں بڑے سے گھر میں چھوٹی بہن اور اماں کے ساتھ رہتا ہوں۔ کبھی کبھی اس جن زادی کی یاد آ جاتی ہے تو اسی درخت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں جہاں پر اس کا ٹھکانہ تھا۔ دل میں خیال آتا ہے کہ نہ جانے وہ مجھے یاد کرتی ہوگی یا نہیں۔ گورگن کئی دفعہ مجھ سے یہ پوچھنے آتا ہے کہ تم اس قبرستان میں کیا لینے آتے ہو، تو میں اس کی بات پر مسکرا دیتا ہوں۔ کیسے بتاؤں کہ جن زادی کے جانے کے بعد میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس نے خود اپنی محبت کا اقرار مجھ سے کیا تھا، لیکن اسی محبت میں مجھے اپنے حصے کا سارا خزانہ دے کر میری قسمت بدل دی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔